सभी मित्रों को आज के दिन की शुभकामनाएं, शुभ संध्या, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और नई दिल्ली के भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला का आज यह 111वां एपिसोड है और आज की इस कड़ी को हमने समर्पित किया है देश के व्यंग्य विधा के जाने माने हस्ताक्षर श्री हरिशंकर परसाई की पावन स्मृति को। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ में अंग्रेजी विभाग की व्याख्याता डॉक्टर उषा सहानी, जो स्वयं भी एक कवयित्री हैं, समीक्षक हैं, नियमित रूप से साहित्य की विभिन्न विधाओं में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। उनके अब तक 2-3 काव्य संकलन एहसास तेरे मेरे, जिंदगी के रंग, मैं और मेरे अल्फाज प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ सुनी कुछ कही शीघ्र प्रकाश्य है। आपके 2 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, हर लाइफ हिज वेज, जिंदगी ए वेब। कुछ संपादित कृतियां भी आपकी प्रकाशित हुई हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो साहित्य के इन विधाओं में नियमित रूप से लिख पढ़ रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर उषा सहानी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. A very warm welcome to one and all present here on this virtual platform. We all are once again fortunate that we are together on this 111th webinar, which we are running in collaboration with Bharati Vidyapeeth University, Indraprasth University, New Delhi. We have started the webinar series way long back, 2nd of October 2020, and it was the idea, it was the baby of Professor Sanjeev Bhanavat, who actually came up with this thought that he wants to work upon the media education as much as possible. So during the very painful time of pandemic, we started this webinar series under the umbrella of Communication Today, the Media Quarterly Bilingual Journal. He also had started this journey 27 years back, wherein he made the research scholars, academicians, students, and practitioners to put their intellectualism through the thoughts and the research articles in this journal in both the languages, Hindi as well as English. He has also worked upon various topics, specific topics, coming up with special issues. So under this umbrella, we have completed 100 webinars talking about media education's various dimensions. And we had completed 100 webinars on 25th of October 2023. After that, Professor Huda had joined hands with this webinar series and given a positive effect to this webinar series by adding up to technological support so that we can run it more effectively and we can reach to more people. So this webinar series is in continuation, and now this is a collaborative effort. Today,
as we all know that this is 111th webinar, and wherein we are having our three of our eminent speakers. We have with us Professor Mrinal Chatterjee, who is going to share his understandings about today's topic. He is an author, translator, and director of IIMC Dhenkanal, Orissa. We also have Dr. Jayanta Karsharma. He is a professor of Hindi and former registrar, OSOU Sambalpur. We also have amongst us Sri Prabhat Goswami, a satirist and former joint director, News, DIPR, Government of Rajasthan, Jaipur. We are sure that we are going to have a lot of insights from our eminent speaker's speech today, and the topic, which is apt again, once again, because this is probably, I should say, that this is never going to uh, end, or this is never going to be an old topic. This is very much to be talked about, and we are going to talk about satire. We all know that what is satire. Satire, where we are talking about something which is creating a fun, but it can be in a very witty manner, with highlighting what wrongs were bad or evil things are there, maybe in a person, in a thing, or a system, which is actually very important for a proper development of a society, a nation, anywhere, wherever we talk about the humanity exists. So this is a very wonderful topic to be talked upon. And I welcome all the participants, those who are here with us to listen to our eminent speakers. And I welcome our eminent speakers as well. And thanks a lot for giving me this opportunity as the organizing secretary of this webinar series. Thank you so much. Over to you, Professor Bhanavat. बहुत बहुत आभार डॉक्टर उषा साहनी, हमारे इस वेबिनार श्रृंखला की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय विद्यापीठ के निदेशक, हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर एमएन होड़ा जी को आप सभी मित्रों के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन के लिए और अपनी बात कहने के लिए। प्रोफेसर होड़ा मूलतः कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एमसीए की डिग्री प्राप्त की और लगभग 3 दशक से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। स्प्रिंगर सिंगापुर से आपका एक दुनिया का एक प्रीमियर प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से कई वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के शोधार्थियों को एक ऐसा मंच मिला है जहां से वे अपने शोध अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। भारत सरकार की अनेक अकादमिक समितियों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। शोध एवं शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान के लिए अनेक संस्थाओं से आप पुरस्कृत हो चुके हैं और अपने कुशल नेतृत्व से आपने भारतीय विद्यापीठ को एनसीआर सहित देश में एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किया है। विशेषकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग को तकनीकी दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, उसकी एक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दृष्टि से आपके प्रयास सराहनीय हैं। पिछली यात्रा के दौरान जब आपसे बातचीत हुई तो हमारी इस एक सदी की 100 कड़ियों की इस यात्रा के बाद आपने एक सहयोग दिया हमको, तकनीकी रूप से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए हमारे इस वैचारिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर होड़ा जी को अपनी बात कहने के लिए। प्रोफेसर एमएन होड़ा जी। Good evening to all my guests today and all the valued speakers. At the outset, let me take this opportunity to welcome today's valued speakers who are accomplished experts in their respective domain. Professor Chatterjee, who is from IIMC. Congratulations to him because IIMC has become a deemed university now, from Orissa. Dr. Jayant, who is from Sambalpur, and Professor Prabhat Goswami, Shri Prabhat Goswami,
who is from, of course, the Rajasthan Sea, the length and breadth which Professor Banawat has covered while inviting speakers from not only different strata of the domain, rather also the different demographic domain. So thank you so much to all of you who have accepted our request and are part of us for this particular important session, which is the Shatabdi Samaroh. बनावत साहब कह रहे हैं कि भारतीय विद्यापीठ के साथ जुड़ने के साथ गति आई, कोई गति नहीं सर, गति तो आप बहुत ज्यादा गति के साथ चल रहे थे। इकबाल का शेर मुझे याद आता है कि अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो जो कारवां में जुड़ते हैं उनके लिए ये सौभाग्य का वक्त है कि जो गतिशील प्रगति से एक चीज चल रही थी उस कारवां में हम जुड़ के अपने को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। जैसे कि गांधी जी देश की आज़ादी के लिए हम हमारे बहुत सारे पुरखों ने गांधी जी के साथ जुड़े, तो वो सिर्फ गांधी जी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे थे, वो स्वाभिमान, वो गौरव अपने लिए इकट्ठा कर रहे थे कि जब एक सफर चल रहा तो उस सफर में हम सब मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भारतीय विद्यापीठ का एसोसिएशन कंट्रीब्यूशन हमारे लिए गौरवान्वित होने का इशू है, न कि हम आपको क्या गति प्रदान करेंगे। आपने 100 एपिसोड बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के किया है, ये अपने आप में इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने IEEE यूएस के बिहाफ पे इंडिया में इसी कोविड के बैकड्रॉप में जो सीरीज शुरू की, और उसके भी तकरीबन हमने 141 एडिशंस किए हैं। जब ऑल ओवर वर्ल्ड से कोविड के 2 सालों में चलाए जा रहे सीरीज को इवेलुएट किया गया, तो जो सीरीज भारतीय विद्यापीठ ने IEEE के साथ चलाई थी वो सबसे बेस्ट सस्टेनेबल सीरीज एडजुडिकेट की गई। आप यकीन करें, अगर कोई एजेंसी आपकी इस सीरीज को एडजुडिकेट करे तो इससे ज्यादा सस्टेनेबल सीरीज दूसरी कोई नहीं मिलेगी। इस सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व को अगर हम इकट्ठा करें तो। और इस सीरीज के साथ जो ब्यूटी है वो ये है कि YouTube पे जो ह्यूज रिपोजिटरी सारे लेक्चर्स का हमने जमा किया है, वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो आने वाले पता नहीं कितने दशकों तक लोगों को रोशनी देता रहेगा, लोगों को नॉलेज देता रहेगा। बनावत साहब बधाई के पात्र हैं, और जिन लोगों ने भी बनावत साहब को, डॉक्टर उषा और बाकी लोगों ने शुरू से उसमें कंट्रीब्यूट किया, हम बहुत बाद में जुड़े हैं, 101वें सीरीज से जुड़े हैं और हम इसे अपना सौभाग्य समझते हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बनावत साहब हमेशा टॉपिक किसी तो सेलिब्रिटी ओकेजन से कनेक्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परसाई के व्यंग और समकालीन समाज। और हम सब जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हिंदी के वो प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। और बहुत आसान, मैं हमेशा एज ए टीचर कहता हूं कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑन दिस अर्थ टू मेक समथिंग और टू प्रेजेंट समथिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इमेजिन करें कि एक कवि समाज में या सोसाइटी में होती हुई प्रॉब्लम को, होती हुई समस्याओं को, होती हुई चीजों को व्यंग के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, हल्के फल्के अंदाज से पेश करे और समाज को उससे बाहर निकाल कर लाए, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैंने तकरीबन 38-39 साल पहले मेरे अलीगढ़ के लाइफ में 4 पंक्तियां शायर के लिए लिखी थी कि कवि कौन होता है। तो मैंने यूं लिखा था कि कवि हूं, शायर हूं मैं, शायर ही करता हूं, जो नहीं सुनते उनको भी सुनाता हूं। तो मानो खुद को दुखी रख के औरों को हंसाता हूं, तुम मानो या ना मानो समाज को उसका आईना दिखाता हूं। और अगर हम ये पंक्तियां हरिशंकर परसाई जी को निछावर करें तो उन्होंने जिस तरीके से समाज की समस्याओं को एक बिल्कुल आसान मनोरंजन और मनोरंजित अंदाज से हमारे सामने पेश किया, वो अपने आप में अद्भुत है। परसाई जी की सरल भाषा और उनके छोटे छोटे वाक्य और जिस तरीके से वो व्यंग को प्रेजेंट करते थे, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन्स को प्रेरणा देने के लिए सफिशिएंट है। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ वो अपनी राइटिंग्स में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी भरपूर इस्तेमाल करते थे और पर्याप्त मात्रा में उसे इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनके रचनाओं की मिठास, उनकी रचनाएं लोगों के दिल तक इतनी आसानी से पहुंच जाती थी कि जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। वो जिस अंदाज से समाज की प्रॉब्लम को लेकर आते थे कि उस अंदाज से हीरे का जिगर भी उनके छोटे छोटे हल्के फल्के शब्दों से कट जाता। इस तरीके का उनका स्वभाव है, इस तरीके की उनकी राइटिंग है, इस तरीके का उनकी अपनी एक शैली है। और व्यंग के अलावा हरिशंकर परसाई जी ने पता नहीं किस किस डोमेन में नहीं काम किया। कुछ मोटे मोटे मैं अभी ढूंढ रहा था कि उनके मोटे मोटे जो छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो उनके संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं कब तक प्रेरणा देती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि जो कुछ इन जैसे विद्वान लोगों ने अपने अपने डोमेन में किया और समाज की प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से वो निकाल कर बाहर लाए, हम उससे क्या सीखते हैं। और आज का ये जो शताब्दी समारोह हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसमें हमारे लिए यही लर्निंग होनी चाहिए कि हम साहित्य के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, अपनी पोइट्री और शायरी के माध्यम से समाज की होने वाली प्रॉब्लम को या सच्चाइयों को छोटे छोटे शब्दों में, आसान हल्के फुल्के शब्दों में कैसे हम समाज तक लाएं और उसमें वो जागरूकता, वो अवेयरनेस लाएं, एक सोशल एजेंट के जैसा काम करें, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा काम करें। भारतीय विद्यापीठ का यूएसपी ही यही है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डायनामिक एजुकेशन। ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है, ये हम सब के लिए सोचने का वक्त है और हम सबको जुड़ने का वक्त है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कह के जो 4 पंक्तियां मैंने कोविड के बीच में समाज की प्रॉब्लम को जोड़ते हुए लिखी थी, उसके साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे। सर आप अनम्यूट अनम्यूट हो गए हैं सर आप। Am I now audible? यस सर। यस सर। सो 4 पंक्तियां जिस पे कंक्लूड कर रहा था मैं, जो कोविड की समस्याएं जो हमारे आसपास थी, जिसने हमें ये सिखाया कि सिर्फ पैसा होना या सिर्फ हमारा कनेक्ट होना कामयाब नहीं हो रहा। और आप इमेजिन करें, जो लोग वीवीआईपी अपने को या मोस्ट वीवीआईपी कहा करते थे, उनके लिए ये चैलेंज था कि एक ऑक्सीजन बेड किसी आईसीयू में दिला के तो दिखाओ। और ऐसे चैलेंज से हम गुजरे हैं। जब मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा, जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। थैंक यू सो मच। इसी उद्देश्यों के साथ ये वेबिनार सीरीज चल रही है और चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। आप सब हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी जानकारी के लिए कि सारी रिकॉर्डिंग राइट फ्रॉम एपिसोड 1 बनावत सर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। 100-01 ऑनवर्ड्स वो भारतीय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, आप उनको जब मिलें, उनको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर रेकमेंड करें, क्योंकि इस तरीके का ह्यूज नॉलेज रिपोजिटरी दूसरा कोई साधन नहीं है जो इस तरीके के लाइव एंड इंपॉर्टेंट सेशंस करते आया है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप लर्निंग डिस्पाइट डिसरप्शंस एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वाइब्रेंट। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू बनावत सर। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर होड़ा साहब। आपने अपनी काव्यमयी शैली में शेर व शायरी और कुछ पंक्तियों के माध्यम से उस प्रख्यात व्यंग्यकार के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए उन्हें व्यंग विधा का प्रवर्तक बताया। आज का यह एपिसोड हम ऐसे ही प्रख्यात साहित्यकार को समर्पित कर रहे हैं उनकी जन्म शती के अवसर पर। मुझे लगता है शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी कि होशंगाबाद जैसा छोटा सा जिला मध्य प्रदेश का और उसका भी एक छोटा सा गांव जमानी, वहां पे 24 अगस्त 1924 को जन्मा, 22 अगस्त 1924 को जन्मा वो नन्हा बालक एक दिन हिंदुस्तान में अपनी व्यंग विधा के कारण जाना जाएगा। बचपन में जब उनकी माता की मृत्यु हुई तब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। 4 छोटे भाई बहन। शायद उस समय हरिशंकर परसाई ही मृत्यु का अर्थ समझते थे। आर्थिक अभावों से जूझते हुए कालांतर में पिता का साया भी सिर से उठ गया। आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने
अपने भाई बहनों के पालन पोषण के लिए जीवन भर विवाह नहीं किया। उन तत्कालीन संघर्षों से उसने प्राणवायु प्राप्त की। उन आर्थिक झंझावातों के बीच अपने भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वन विभाग में नौकरी की और वहीं से शायद लेखन यात्रा भी उनके आगे बढ़ती है। नौकरी में मन नहीं लगा, नौकरी छोड़ दी, अध्यापन में आए। बहुत लंबे समय तक वो उसमें जुड़ नहीं पाए और बाद में जबलपुर में रहते हुए स्वतंत्र लेखन करने लगे। ऐसे महान रचनाकार जिनको विद्यालय जीवन में ही लेखन के संस्कार अपने शिक्षक से मिलने लगे थे। बहुत पढ़ा इन्होंने, बहुपठित थे और स्वाभिमानी इतने कि किसी प्रकार के समझौते नहीं करते थे। मैंने यहां तक भी कुछ प्रसंग पढ़े हैं जब कक्षा में शायद वो पहली दूसरी क्लास में थे। आप कल्पना कीजिए, दूसरी क्लास का बच्चा जिसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता है, लेकिन जब इनके शिक्षक ने हरिशंकर कह करके बुलाया तो इन्होंने शिक्षक को टोका, हरिशंकर नहीं, मेरा नाम हरिशंकर है। इस प्रकार के एक स्वाभिमानी शिक्षक ने व्यंग विधा के क्षेत्र में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई, धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, और जैसा होड़ा साहब ने कहा कि अपने समय के समाज के यथार्थ को अपने लेखन के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया, वो उस ट्रांजिशनल फेज के प्रतिनिधि लेखक थे जिन्होंने आजादी के बाद और देश को आजाद होते हुए कहीं देखा। स्वयं परसाई कहते थे कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंड का पर्दाफाश करता है और उनका संपूर्ण लेखन की पृष्ठभूमि संभवतः उनके इस कथन में स्पष्ट झलकती है। हरिशंकर परसाई ने पाठक को प्रेरित किया प्रश्न पूछने के लिए, और आज भी हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी बात पर बल देते हैं कि हम हमारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से भी प्रश्न पूछें। जब हम इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तभी सही अर्थों में लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतंत्र जीवंत बना रहेगा। साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन किया। 2 वर्ष बाद आर्थिक संकटों के कारण पत्रिका बंद हो गई। बाद में मध्य प्रदेश प्रगतिशील संघ की मुख्य पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। इसका संपादन दायित्व उन्होंने ही संभाला। उसी दौर में इन्होंने देश के अनेक पत्रों में लिखना शुरू किया। देश बंधु में पूछो परसाई नामक कॉलम उन्होंने शुरू किया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से इस विधा को साहित्य में कहीं न कहीं समर्पित किया, स्थापित किया। स्वयं पर भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं रहे। बिना फिट कुछ करके था जिसमें उन्होंने यात्रा संस्करण भी उन्होंने लिखे। आपातकाल की मुखर आलोचना वो करते हैं, और किसी आलोचक ने तो टिप्पणी करते हुए लिखा है, परसाई की लंबी काया बंदूक की नली लगती है जिसमें से निकलते हुए व्यंग भन्नाते हुए से प्रतीत होते हैं और जन शत्रु को छार छार कर देता है। किस प्रकार से उसमें तीखापन था, प्रहार था। तो उन्होंने व्यंग लिखे, संस्मरण लिखे, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। जिस भोलाराम के जीव कहानी का आपने उल्लेख किया होड़ा जी ने, हम तो टेक्स्ट के रूप में इस कहानी को पढ़ते थे। किस तरह से सरकारी कार्यालयों की लाल फीताशाही पर उन्होंने एक मुखर टिप्पणी की, अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, और वहीं अनेक भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद भी किया गया। समाज के उत्थान पतन, सुख दुख, आशा निराशा आदि को एक सहयात्री के रूप में उन्होंने अपने पूरे युग को कहीं न कहीं महसूस किया। अंतरजातीय विवाह को भी समर्थन देते हुए उन्होंने कहा, 24-25 वर्ष की आयु में हमें भारत सरकार को चुनने का मौका मिलता है, लेकिन हम जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। ये कैसी विडंबना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं लिखा है कि व्यंग वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला जाए। हरिशंकर परसाई द्विवेदी जी के इस कथन का पर्याय थे, जिन्होंने जातीयता और धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक विसंगतियों पर तीखे प्रहार किए और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा।
संस्थानों की अक्षमता को उन्होंने नहीं बख्शा, अवसरवादिता को उन्होंने नहीं बख्शा। उनका व्यंग लेखन मूलतः जन शिक्षण था, जीवन और समाज के पाखंड को उजागर करने वाला था, पाखंड और स्वार्थ परायणता पर प्रहार करने वाला था। मध्यवर्गीय मन को उन्होंने किसी न किसी रूप में पहचानने का प्रयास किया। व्यंग को वो करुणा के साथ जोड़ते हैं और स्वतंत्र भारत की दशा और दिशा को समझते हुए भविष्य का मार्ग कहीं न कहीं तलाशने की कोशिश करते हैं। स्कूल में पढ़ते हुए मर्चेंट ऑफ वेनिस में उन्होंने अभिनय भी किया, एक नाटक था जिसमें उन्होंने अभिनय किया। और जो मैंने रेफरेंसेस देखे थे उसमें यह भी मालूम पड़ा, क्योंकि किशोर कुमार, वो इंदौर में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया था, तो किशोर कुमार जो एक फिल्मों के बड़े गायक कलाकार थे, जिस समय उनका नाम था आभास कुमार गांगुली, उसको भी उन्होंने पढ़ाया था। 23 नवंबर 1947 में उनकी कहानी छपती है, पहली उदार नाम से उन्होंने कहानी लिखी थी, और उस वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष पर केंद्रित वो कहानी थी। कुछ आलोचकों ने उन्हें कबीर के साथ जोड़ा है। ये कहना मतलब कि इस हरिशंकर परसाई के जीवन के बहुत सारे पक्ष थे, या यूं कहें कि उनका लेखन अपने समय का आईना था। कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, संविधान, राजनीति, परिवार, संसद, न जाने कोई विषय शायद ऐसा नहीं होगा जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो। और तो और शब्दों पर अद्भुत पकड़। राजधानी, वो कहते थे राज शब्द सांस्कृतिक सामंती प्रतीक है। आप राजधानी क्यों कहते हैं? आप लोकधानी शब्द का प्रयोग कीजिए। एक एक शब्द के ऊपर कहीं ना कहीं यूं कहें कि वो भाषा के समाजशास्त्री थे, भाषा के मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं वो समझते थे। एक छटपटाहट थी, व्यवस्था विरोधी लेखन पूरी ताकत के साथ उन्होंने लिखा। विश्वविद्यालयों में हो रही शोध पर कटाक्ष करते थे। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालयों में नई शोध वो बौद्धिक स्थापना को लेकर के बहस नहीं होती है, बहस होती है अच्छे बंगले, चपरासी और बड़े बड़े बगीचों को लेकर के। उस समय का जो दौर था, तो देखिए कितनी जो गंभीरता से उन्होंने अपने पूरे परिवेश को कहीं ना कहीं देखना, समझना शुरू कर दिया था। पीएचडी की डिग्री जिस तरह से बट रही थी, उन्होंने लिखा कि पीएचडी कहीं एक ढेला फेंको तो वह किसी डॉक्टर साहब पर जाकर के गिरेगा। तो इन डिग्रियों की कहीं ना कहीं जिस तरह का दौर था या अप्रासंगिक हो गई थी या जिस तरह से बट रही थी, उन पर भी उन्होंने कटाक्ष किए। तो एक जिस तरह से उन्होंने एक सच्चे व्यंग को जीवन की समीक्षा के साथ जोड़ा, अपने आप में उनका योगदान अद्भुत है। अभी इस वेबिनार के शुरू में मेरी भाई प्रभात गोस्वामी से बात हो रही थी कि हमने जब पढ़ते थे हम, तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर व्यंग था, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जिसकी पहली पंक्ति थी कि हमारे देश में 15 अगस्त भीगता है और 26 जनवरी ठिठुरती है। उसमें उन्होंने जनता की उस अवस्था को लेकर के बहुत तीखा प्रहार किया था। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता इतनी ही है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनते हैं। अगर जनता के बिना सरकार बन सकती तो जनता की कोई जरूरत नहीं होती। जनता कच्चा माल है, इससे पक्का माल विधायक, मंत्री आदि बनते हैं। पक्का माल बनने के लिए कच्चे माल को तो पिसना ही पड़ता है। देखिए कितनी तीखी पकड़ उस व्यक्ति की अपने समसामयिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर थी। ऐसे ही प्रख्यात साहित्यकार के प्रति आज हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जन्म शती वर्ष में कुछ उन शोध अनुसंधानकर्ताओं से उनके बारे में सुनेंगे जिन्होंने हरिशंकर परसाई के जीवन को, उनकी व्यंग विधा को बहुत गहराई से देखा, समझा और परखा है। इस आयोजन की चर्चा बहुत लंबे समय से मेरी भाई मृणाल चटर्जी से हो रही थी। मृणाल जी हमारे बड़े पुराने मित्र, भारतीय जनसंचार संस्थान में उन्होंने हाल ही में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी 2 दिन पहले ही वो। और जैसा हुडा जी ने कहा कि भारतीय जनसंचार संस्थान को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है। इसके पूर्व वे एक उड़िया अखबार संवाद, इसके संपादक रह चुके हैं। विज्ञान और तकनीकी विषयों पर आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकार के रूप में लेखन या उस बीट रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम किया है। के बिरला फाउंडेशन के से आपको रिसर्च की फेलोशिप मिली है। जो आपके स्थानीय चैनल हैं ईटीवी, उड़िया आदि, उसमें आप रेगुलर शोज आपने कंडक्ट किए हैं।
और स्वतंत्र लेखन करते रहे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है, विभिन्न विधाओं में उपन्यास लिखे हैं, लघु कथाएं लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। बहुत लिखा है आपने, विपुल मात्रा में आप और नियमित रूप से लिख रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे में कई वर्षों से आपका रेगुलर कॉलम चलता है, जिसमें वो न्यूज़पेपर की हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो मृणाल जी से मेरी बात होती रही कि क्यों नहीं हरिशंकर परसाई के जन्म शती वर्ष में अपने के आयोजन करें, और मृणाल जी ने हरिशंकर परसाई की जो व्यंग है उनके 28 व्यंग को लेकर के एक उड़िया में ट्रांसलेट करके एक पुस्तक प्रकाशित की है। मुझे मृणाल जी का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मृणाल जी हमसे जुड़ चुके हैं? मृणाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुरू, हाँ, मृणाल जी का वो तो दिख रहा है मुझे। मृणाल जी आप सुन रहे हैं मुझे? दिख तो रहा है इनका नाम, लेकिन सुन हाँ नहीं पा रहे सर, हैं। सर कनेक्टेड तो है। हाँ, वो शुरू में उनका इशारा हो रहा था कि वो अपनी आवाज उनको नहीं जा रही है, ऐसा कुछ मुझे लगा था। तो चलिए, मृणाल जी यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि इनकी पुस्तक भी इसी मन से रिलीज करनी है अपने को आज, तो जी। मैं इसके पहले कि उनसे फोन पर संवाद करूं, मैं भाई प्रोफेसर जयंत कर शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब भाई जयंत जी से भी मेरा परिचय मृणाल जी ने ही कराया है। आप तो स्वयं हिंदी के ही वरिष्ठ शिक्षक रहे हैं, तो हरिशंकर परसाई के उस सारे साहित्य को, उनके व्यंग लेखन को आपने बहुत ही गहराई से, गंभीरता से देखा, समझा है। और भाई जयंत जी के करियर में भी अध्यापन के साथ साथ एक प्रशासक का भी अद्भुत गुण है। तो एक आज हम सुनेंगे एक अध्यापक और प्रशासक को। आपने कुल सचिव के रूप में काम किया उड़ीसा ओपन यूनिवर्सिटी में, और फाइनेंस ऑफिसर के रूप में भी। जब मैं इनका वो प्रोफाइल देख रहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हिंदी का जो प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, वो फाइनेंस का भी काम देख सकता है। ये बड़ा 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 प्रेरक उनका पक्ष है कि हिंदी के प्रोफेसर को फाइनेंस ऑफिसर के रूप में भी कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाए। मेरे ख्याल देश में एक ये अनूठा ही उदाहरण होगा। जो पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं, मैंने भी काम किया ये, कि विश्वविद्यालय का पीआर का काम तो देखते हैं, और जो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं वो हमारे फाइनेंस कमेटी में या उसमें रहते हैं प्राय। लेकिन एक हिंदी के व्याख्याता को, प्रोफेसर को, शिक्षक को, शोधार्थी को इस तरह का दायित्व दिया जाए, मुझे लगता है। और वित्त नियंत्रक, कुल सचिव और अनेक जो विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में दूसरे काम करने पड़ते हैं, उनके साथ आप जुड़े रहे। आपने अपने करियर की शुरुआत उत्तर बंगाल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सिलीगुड़ी, वहां से आपने अपने करियर की शुरुआत की। उत्कल यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, और विश्व भारती कोलकाता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम मैंने लिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो कर्म भूमि रही। मेरे लिए वो क्षण बड़े रोमांचक थे, जब हिंदी भवन के सामने, हालांकि वो उस दिन छुट्टी का दिन था तो मैं उस कक्ष में तो नहीं जा पाया, लेकिन बाहर खड़े होकर के हमने प्रणाम किया शांति निकेतन की उस भूमि को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल जैसे निबंध लिखे वहां बैठ करके। तो उसी विश्वविद्यालय से आपने अपना पीएचडी और मास्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रहे, वहां से आपने अपना जो औपचारिक शिक्षा है वो आपने प्राप्त की। और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के बाद आपने उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से, वहाँ जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं वहाँ आपने ज्वाइन किया, और लगभग 4 दशकों से तक आपने अध्यापन किया, सेवानिवृत्ति के पूर्व। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका रुचि का और विशेषज्ञता का क्षेत्र है, वो तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद है। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 12 संपादित पुस्तकें हैं, और अनेक लेख आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। अनुवाद भी आपने उड़िया से हिंदी में बहुत सारे किए हैं। अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, मुख्य रूप से साहित्य श्री और साहित्य भूषण जैसे उपन्यास उपाधियां आपको सम्मान के रूप में दी जा चुकी हैं। अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपको भाग लेने का मौका मिला है। मॉरिशस, नेपाल, दुबई, श्रीलंका आदि अनेक देशों में की आपने यात्राएं की हैं। मैं भाई प्रोफेसर जयंत कर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जिस रूप में हरिशंकर परसाई की इस पूरी यात्रा को देखा, समझा, महसूस किया है, अपना कुछ अद्भुत उद्बोधन हमें प्रदान कर अनुग्रहित करें। भाई जयंत कर शर्मा जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। परम आदरणीय संजीव बनावत जी, मेरे बड़े भाई मृणाल चटर्जी, प्रभात जी, आदरणीय हुड्डा जी, आदरणीय उषा जी, मेरे तमाम सहभागी मित्रों,
आप सभी को मेरा नमन, नमस्कार, प्रणाम। ये मंच मेरे लिए नया नहीं है। कोरोना काल से कई संगोष्ठियों में मैं जुड़ा रहा और ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस बार आप लोगों को सुनने के साथ-साथ कुछ मेरे विचार परसाई जी पर साझा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। भाई मृणाल चटर्जी मेरे हम एक ही कॉलेज के अध्येता रहे हैं। मेरे 1 साल बड़े हैं। एक ही जगह के हम हैं। तो उनके साथ बराबर पिछले 40 साल से मेरा संपर्क है और उन्होंने हाल ही में अ, हरिशंकर परसाई जी के जो जन्म शती का अभी हाल ही में पालित हुआ, तो उस सिलसिले में उन्होंने परसाई जी की 28 कहानियों का उड़िया में अनुवाद किया, जो कि भोलाराम रो आत्मा व भोलाराम की जीव जो भोलाराम का जीव जो है उनकी कहानी, उसके आधार पर उसका शीर्षक जो है दिया है। और मेरा सौभाग्य है कि उसकी जो भूमिका हमने लिखी है, तो एक तरह से परसाई वैसे तो हिंदी साहित्य में सबसे पढ़े जाने वाले लेखक माने जाते हैं और मेरे एक हिंदी अध्यापक रहने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाना और परसाई जी को पढ़ने का एक अलग सी रुचि मेरे मन में है। तो इस सिलसिले में आइए परसाई जी का जो व्यंग है और जो समकालीन समाज है इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करें। मेरे जो विचार मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को सुनने का भी मेरे मन में बहुत बड़ा व्यग्र है। मृणाल भाई का शायद कुछ कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, शायद थोड़ी देर में आ जाए। तो परसाई जी जैसा कि हम जानते हैं सारे लेखक जो होते हैं वो अपनी अनुभूति से बड़े बने हैं और जो लेखक होता है आमतौर पर अनुभूति से अभिव्यक्ति तक की जो यात्रा है ये तय करता है। और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि रचनाकार का जो अनुभव जितना समृद्ध होगा उसकी कृति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। इस सिलसिले में हरिशंकर परसाई के लेखन में ये जो अनुभवजन्य परिपक्वता हमें देखने को मिलती है, खास करके उनके जो व्यंग रचनाएं हैं उनको पढ़ते हुए। जैसे कि बनारस सर ने अभी बताया कि परसाई जी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य जगत के एक प्रतिभा संपन्न और युगधर्मी व्यंगकार हैं। उन्होंने अपने समय की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखने के लिए व्यंग को माध्यम बनाया और व्यंग को सबसे बड़े हथियार के रूप में, एक अस्त्र के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि व्यंग वह साहित्य की विधा है जो आधुनिक संदर्भ को सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर सकने की क्षमता रखता है। हिंदी व्यंग को एक नई दिशा और एक नया आयाम परसाई जी ने दिया है और उन्होंने व्यंग को चर्चा का महत्वपूर्ण विषय भी बनाया। उन्होंने व्यंग का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक अस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में प्रयोग किया, ना कि सुधार के उद्देश्य से। यूं कहें तो सुधार में उनका विश्वास ही नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन और इसी के साथ साथ व्यक्ति से लेकर के समाज में जो बदलाव है, परिवर्तन है, जो क्रांति है, क्रांतिकारी परिवर्तन, इसको उन्होंने अपना एक दायित्व समझा। उन्होंने समाज की जो विसंगतियां, क्योंकि विसंगति से ही व्यंग पैदा होता है, उन्होंने देश में पनप रही बदसूरती को निकट से देखा, जांचा, परखा, समाज का जो नग्न यथार्थ है उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने समय की राजनीति में पनप रही विद्रुपताओं और विकृतियों की जो तिल मिला देने वाली जो तीखी और आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने व्यंग को माध्यम बनाया। परसाई को पढ़ने के बाद पाठक के मन में पहले जैसी अनुभूति नहीं रहती। पाठक के मन में एक विराट परिवर्तन आता है, वो पहले जैसा नहीं रह पाता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति में
अवश्य ही प्रगतिशील परिवर्तन जरूर आएगा। और परसाई के यहाँ लेखक का अर्थ जनता के प्रति जवाबदेही, कमिटमेंट, जो एक सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति जो एक कमिटमेंट है, जवाबदेही है, और यह जवाबदेही परसाई ने अपने पूरे साहित्य के जरिए करते रहे जीवन भर। और परसाई जी का जो रचना काल रहा वो स्वातंत्र्योत्तर काल के लगभग आधी सेंचुरी, लगभग 50 वर्ष, 5 दशक तक वो रहे। और इन 5 दशकों में उन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग के माध्यम से एक सामाजिक परिवर्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया, एक प्रगतिशील परिवर्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया। और जब, जैसे कि बनावट सर और हुड्डा सर बता रहे थे कि जब परसाई जी हिंदी साहित्य जगत में उनका अवतरण हुआ, तब व्यंग अपने शैशवावस्था में था, शिशु अवस्था में था। व्यंग का कोई एक परिपक्व अवस्था नहीं थी। तो ये परसाई जी हैं जिन्होंने व्यंग को, जैसा कि आप बता रहे थे कि व्यंग को उन्होंने एक विधा के रूप में जन्म दिया। हालांकि परसाई जी किसी विधा में विश्वास नहीं करते हैं। ये कहानी की विधा है, ये उपन्यास की विधा है, ये नाटक की विधा है। वो किसी विधा में बंद करके रहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो उन्होंने किसी बंधे बंधाए ढांचे में बंधना नहीं चाहते थे। इसलिए वो विधाओं का अतिक्रमण कर जाते थे। और उनके ऐसे निबंध भी हैं जिनको पढ़ते हुए, निबंध आमतौर पर विचारात्मक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, लेकिन उनके निबंध को पढ़ते हुए हमें लगता है जैसे कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए इतने बौद्धिक लगते हैं कि इस व्यंग के पीछे जो बौद्धिकता है उसको पढ़ते हुए जैसे कि हमको लगता है कि हम निबंध पढ़ रहे हैं। तो ये परिवार से लेकर के समाज, और समाज से लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जितनी ही विसंगतियां हैं, जितनी ही विडंबनाएं हैं, उन सारी विडंबनाओं को उन्होंने करीब से देखा। और उनको जो मैंने उनके माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से पाठकों को और जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, एक खलबलाहट उनमें पैदा कर दी, और पाठक के मस्तिष्क पर इतना जोरदार प्रहार करके सोचने के लिए मजबूर किया कि वो चुपचाप पहले जैसे बैठे नहीं रह सकते। परसाई ने समाज का सर्वेक्षण बहुत गहनता से किया। उस सर्वेक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकले, उनका प्रस्तुतिकरण उन्होंने साधारण शब्दों में कर दिया। और विधा की परवाह किए बिना उन्होंने जो अपनी जो साहित्य की यात्रा वो आगे बढ़ाते रहे। हालांकि उन्होंने हम पाठकगण उनकी 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 रचनाओं को विभिन्न विधाओं में बांटते हैं, लेकिन परसाई जी अपने ऐसी कोई पाबंदी के साथ उन्होंने नहीं लिखा कि ये कभी कभी तो जैसा कि मैंने कहा, कहानी और ये निबंध उनके मिल जाते हैं, उनको अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अपने समाज में वर्तमान में जो कुछ घट रहा है वो परसाई जी की कहानी में बार बार दिखता है। यथार्थ का सजीव चित्रण होने के कारण उनकी कहानियां खरी है। जो परिवेश की नई कहानियों का था, लगभग 60-70 के दशक में एक हिंदी साहित्य में नई कहानी का दौर आया, नई कहानी का दौर। और जो नई कहानी का दौर था, परसाई जी की कहानियों में हम उसको पाते हैं। लेकिन एक परिवर्तन देखिए, एक पृथकता उसमें पाई जाती है कि जब नई कहानीकार कुंठा, संतरास, प्रणय और परिणाम में कथा वस्तु तलाश कर रहे थे, उसी समय परसाई जी ने अपने आसपास के समाज से, अपने आसपास के समाज में घट रहे छल और पाखंड के विरुद्ध लिखकर जनता की आवाज को बुलंद की। बिल्कुल नई कहानी से हट करके उन्होंने जो पाखंड है, जो विडंबना है, जो विसंगतियां हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। और उनका जो दृष्टिकोण रहा वो हमेशा वैज्ञानिक रहा, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यंग को अपना रक्षा कवच के रूप में अपनाया। और उनकी कहानियों में एक व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है वो देखने को मिलता है।
उनकी कहानियों में भारत की सजीव तस्वीर दिखती है। उनमें उनका जीवन दर्शन और व्यापक विश्व दृष्टि देखने को मिलती है। उन्होंने मनुष्य की मुक्ति और मानवीय मूल्यों की स्थापना की। जिस प्रकार चेखोव की कहानियों की कल्पना उनमें निहित व्यंग के बिना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार परसाई की कहानियों की समीक्षा करते समय कहानियों में जो अंतर्दृष्टि है वो व्यंग के बिना हम समझ नहीं पाएंगे। यानी व्यंग ही उनके सारे साहित्य की रीढ़ की हड्डी है। उनकी कहानियां आम आदमी से सीधा तादात्म्य स्थापित करती है। पाठक पढ़ते समय अनुभव करता है कि ये कहानी उसकी ही बात कह रही है। आम आदमी का चरित्र परसाई जी की कहानियों का केंद्र बिंदु है, जिसमें शोषित पक्ष की आहें और कराहें आसानी से सुनी जा सकती। क्रांति के लिए अग्रदूत की भूमिका उन्होंने निभाई और परसाई जी ने सदाचार का ताबीज जो अभी अभी बनावट सर उल्लेख कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है और जीवन की आलोचना करता है। ये सदाचार का ताबीज में उन्होंने ये बात कही है। परसाई जी हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना, हम हास्य और व्यंग को मिला देते हैं। तो परसाई जी ने हास्य को व्यंग से अलग किया, हास्य से व्यंग को अलग किया। सभी जानते हैं, मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे मजेदार घटना सुन करके हम पहले हंसते हैं, लेकिन जहां हंसी खत्म होती है, जहां हास्य खत्म होता है, वहीं से हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहीं से हमारा विचार शुरू होता है। ये जो विचार है, ये व्यंग हमें मजबूर करता है, व्यंग हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। तो परसाई जी के जो व्यंग है, हाँ थोड़ा बहुत उसमें मजाक है, मनोरंजन है, लेकिन उनके अधिकांश जो कहानियां हैं, लगभग सारी की सारी कहानियां मैं कहूँगा, उनमें पाठक को सोचने के लिए उन कहानियां मजबूर कर देती है और इतने पाठक को सोचने में मजबूर करती है कि पाठक पहले जैसा नहीं रह पाता है, उसके मन में व्यापक परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी परिवर्तन उनमें आता है। परसाई जी ऐसे पहले व्यंग लेखक हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। व्यंग क्या होता है, एक मानक, व्यंग का एक मानक प्रस्तुत किया। और जैसे कि सर बता रहे थे, इतने कठोर तिक्तता, कठोर सत्यता, कठोर यथार्थ के भीतर भी उनमें एक करुणा की धारा, जैसे जलधारा होती है, झरना, करुणा की धारा उनमें बहती रहती है उन कहानियों के माध्यम से, उनके व्यंग के भीतर। उन्होंने कभी भी अपनी रचना धर्मिकता के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी पक्षधरता का प्रमाण वे जीवन पर्यंत अपने लेखनी से देते रहे। कभी सत्य से आंख न छिपाई, झूठ का साथ नहीं दिया, निश्चल भाव से फरेब को बेनकाब किया और जीवन पर्यंत उन्होंने व्यंग को हथियार के रूप में, अस्त्र के रूप में चलाई। परसाई जी का साहित्य चाहे समाज से विसंगतियां हो, चाहे पाखंड कुरीतियां हो या कुरीतियों को दूर न कर पाए हों, आज भी वो कुरूपताएं हैं, आज भी वो विद्रुपताएं हैं, आज भी वो विसंगतियां हैं। भले ही वह दूर ना हुए हों, परंतु वह उन लोगों में मनोबल जरूर बढ़ाता है। जो भी पाठक परसाई जी को पढ़ा है, परसाई जी की कहानियों को पढ़ा है, परसाई जी के व्यंग को पढ़ा है, उनमें जरूर ये परिवर्तन आया है। जरूर उनमें एक जो मनोबल है, ये मनोबल जरूर बड़ा होगा, जरूर बढ़ा है। हम पाठकगण यही महसूस करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्षों में अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से एक प्रबुद्ध पाठक वर्ग उन्होंने प्रस्तुत किया। परसाई की कहानियों में आप पाएंगे मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी चीज के रूप में, बहुत बड़े कारण के रूप में परसाई के व्यंग में आप पाएंगे, क्योंकि उनमें विभाजन दिखाई देता है। मैं परसाई जी मैं मध्यम वर्ग क्या होता है उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हम सब लगभग मध्यम वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और हमने क्या कमजोरियां हैं, हमने क्या लचीलापन है, वो हम जानते हैं, खुद महसूस करते हैं। ये
हम में ये जो मध्यम वर्गीय इंसान है उनमें एक विभाजन, व्यक्तित्व का विभाजन है। उनके कथनी और करने में फर्क होता है। वे अपने से निचले वर्ग को काफी है दृष्टि से देखते हैं। राजनीति के यथार्थ और उसकी जटिलता के पीछे समाज के मध्यम वर्ग की भूमिका काफी प्रभावी दिखाई पड़ती है। यद्यपि राजनीति के दोहरे चरित्र के पीछे अर्थतंत्र प्रभावी होता है, लेकिन परसाई जी ने मध्यम वर्ग की तुलना केचुए से की है, जिसके पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए उसके पूरे शरीर में क्रमाकुंचन अर्थात दोहरा चरित्र बराबर बना रहता है। तो परसाई जी के व्यंग में हम मध्यम वर्ग को एक सामग्री के रूप में पाएंगे, जो कि उन्होंने एक में कहा है कि एक और उसमें मध्यम वर्ग का अहंकार, दूसरी ओर निम्न वर्ग की दीनता। मध्यम वर्ग का अहंकार, निम्न वर्ग की दीनता, और ये अहंकार और दीनता से मिलकर उसका व्यक्तित्व बड़ा विचित्र होता है। वो बड़े साहब के सामने दुम हिलाता है और चपरासी के सामने सर बन जाता है। तो ये मध्यम वर्ग जो है उनकी कहानियों में एक प्रमुख सामग्री के रूप में, मुद्दे के रूप में ये आया है। और हम यह कहेंगे कि परसाई जी का लेखन कोई सीमित नहीं है, उसमें पूरा भारतीय समाज है, पूरा भारतीय समाज उसमें मौजूद है। समाज का कोई भी कोना उनके व्यंग से छूट नहीं पाया है। वे समग्र जीवन दर्शन संपन्न व्यक्ति हैं और उनका मूल उद्देश्य है समाज में बदलाव लाना। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने साहित्य को समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। और जैसा कि सर बता रहे थे बनावट सर, कि वो कबीर की तरह दुनिया को अच्छी तरह जांचा और परखा, करीब से, बहुत नजदीक से उन्होंने देखा। और ये उनमें उनमें जो कबीर, निराला, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, ये सबका एक मिला जुला व्यक्तित्व हम देखने को पाते हैं। और ये परसाई जी को प्रेरणा देते हैं और परसाई जी को रुलाते भी हैं। इनके साथ स्वतंत्रोत्तर भारत का जो वंचित और यंत्रणाग्रस्त जन समुदाय है। परसाई एक प्रगतिशील लेखक हैं। मार्क्सवादी दर्शन से वे प्रभावित हैं। खाली मार्क्सवादी नहीं, खुद जनवादी भी है, जनवादी भी। उन्होंने अपने संपूर्ण कृतित्व में मार्क्सवादी जीवन दर्शन को उन्होंने वाणी दी है, यानी उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन की मार्क्सवादी व्याख्या की। राजनीति उनके विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। यह केवल राजसत्ता का वर्णन नहीं, जीवन की पूर्णता की व्याख्या है, इतिहास की व्याख्या है। वो राजनीति को अलग नहीं मानते हैं समाज में, क्योंकि क्योंकि समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों की समझ और पकड़ परसाई के लेखन में देखी जा सकती है। इसलिए परसाई ने राजनीतिक व्यंग ज्यादा लिखे। उन्होंने राजनीति को एक निर्णायक शक्ति एवं जीवन से घुला मिला मानते हैं। और राजनीति, परसाई के अनुसार राजनीति और लेखन दो विरोधी बातें नहीं है, ये परस्पर परिपूरक है। क्योंकि क्योंकि आजकल की राजनीति में उस समय स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति में ये विसंगतियां ज्यादा पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है। और लिहाजा उनकी उनकी उनके व्यंग में राजनीतिक व्यंग ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ तक तो लोग कहते हैं कि वो अति राजनीतिक होने का लेवल उन पर लगाया जाता है। और उनके हिसाब से राजनीतिक होना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीति से जुड़ने का मतलब है उनके हर गलत हिस्से को दिखलाना और मानव समाज से जुड़ना। इस अर्थ में परसाई मानव समाज को बेहतर बनाने वाली राजनीति से जुड़े रचनाकार हैं। क्योंकि राजनीति के साथ सरकारी तंत्र जुड़ा हुआ है, सरकारी तंत्र के साथ भी भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। तो इसलिए राजनीति, सरकारी तंत्र, ये व्यंग से अलग नहीं हो पाते हैं। तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अफसरशाही, गैर जिम्मेदारी आदि विद्रूपताएं बढ़ती जाती है। जैसे कि सर बता रहे थे भानावत सर की लोक शिक्षण उनकी कहानियों का, उनके व्यंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों को शिक्षित करना, उनके हिसाब से आज तक कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी
तत्व लोगों को शिक्षित करना पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर पाई, यानी कि लोक शिक्षण की कमी रही। तो परसाई जी का उद्देश्य यही रहा कि लोक शिक्षण करूं, लोगों को शिक्षा दूं, ताकि लोग अपने अधिकार के बारे में जाने और जो समाज में घट रही विडंबना है उसे पहचाने और अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो सर भी बता रहे थे कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में जो अराजकता है, विसंगतियां हैं, उस पर भी उन्होंने कैंची चलाई, उन्होंने आवाज बुलंद की। उनके साहित्य में विश्वविद्यालय का यथार्थ भी बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय में व्याप्त राजनीति, परीक्षा प्रणाली की खामियां, अध्यापकों की खेमेबाजी, शोध की दिशा और दशा, विद्यार्थियों में व्याप्त अराजकता, ये सब उनके लेखन में विषय के रूप में आते रहे। परसाई जी के सामने एक मिशन था समाज को जगाने का और बदलने का। तो यही उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से की। और ऐसी कहानियां जो हैं, असुविधा भोगी, आचार्य जी, एक्सटेंशन और बगीचा, ग्रांट अभी तक नहीं आया, इति श्री रिसर्चाय, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक मिथक के माध्यम से इसको आजकल के जो अध्यापक हैं बहुत बड़े मिथक के माध्यम से एक बहुत बड़ी व्यंग रचना है ये। रिसर्च का चक्कर, समाज के गुरु का यह उपहास आदि जो कहानियां हैं, ये सब विश्वविद्यालय और हमारी शिक्षा व्यवस्था के पोल खोलने में काफी है। परसाई जी हमेशा बताते रहे कि ये जो जमाना है मिसफिट का युग है। मिसफिट यानी कि जिसको जहां रहना चाहिए वो नहीं है वहां। यह मिसफिट का युग है भाई। जिसे जिसे जुआखाना चलाना चाहिए वो मंत्री है, जिसे डाकू होना चाहिए वो पुलिस अफसर है, जिसे दलाल होना चाहिए वो प्रोफेसर है, जिसे जेल में होना चाहिए वो मजिस्ट्रेट है, जिसे कथावाचक होना चाहिए वो कुलपति है, जिसे जहां नहीं होना चाहिए वह ठीक वही है। तो ये इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो युग है ये मिसफिट का युग। उनका संपूर्ण साहित्य मूलतः अस्वीकार और आलोचना का साहित्य है। उनका साहित्य व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध और प्रतिवाद का स्वर उनके साहित्य में देखने को मिलता है। वो मूल्यों में विश्वास करते हैं। मूल्यों में विश्वास और आस्था को मजबूत करते हुए हमारे मन मस्तिष्क के बंद खिड़कियों को खोलकर एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो हमें निरंतर सजग और जागरूक बनाता है। परसाई जी ये भी कहते हैं कि आजकल व्यंग की प्रतिष्ठा इसी बीच साहित्य में काफी बढ़ी है। पहले व्यंग का जितना आदर नहीं होता था, आजकल हो रहा है। वो व्यंग करते हैं कि वह शूद्र से क्षत्रिय मान लिया गया है। शूद्र से क्षत्रिय। व्यंग साहित्य में ब्राह्मण बनना भी नहीं चाहता क्योंकि वह कीर्तन करता है। आज हिंदी लेखन में व्यंग का जो परिष्कृत रूप हमारे सामने है वह ना होता यदि परसाई जैसे प्रतिभाशाली साहित्यकार हमारे सामने सक्रिय ना हुए होते। और मैं अंत में इतना बताना चाहूंगा कि परसाई समकालीन यथार्थ की गहरी पहचान रखने के कारण ही हमारे समय के सबसे अधिक प्रामाणिक और पुख्ता स्वर है। वह स्वर सिर्फ एक साहित्यकार का नहीं बल्कि सुचिंतित समाज चिंतक का भी है, जिसका मूल उद्देश्य, और ये मूल उद्देश्य बताते हुए मुझे दुष्यंत कुमार याद आते हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध गजल है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हरिशंकर परसाई जी को उनकी जन्म शती पर बहुत बहुत मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है। और भानावत सर, हुड्डा सर, प्रभात सर, भाई मृणाल चटर्जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ मेरे विचार आपके समक्ष साझा करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार भाई जयंत शर्मा जी। आपने हरिशंकर परसाई जी के उस विराट व्यंग लेखन के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला। किस तरह से हरिशंकर परसाई ने व्यंग विधा को प्रतिष्ठित किया, न सिर्फ प्रतिष्ठित किया बल्कि उसको हास्य से अलग करते हुए किस तरह से उसमें करुणा के भाव को जोड़ा। वे आज भी भारतीय समाज की उन मौजूदा परिस्थितियों पर किस तरह से कटाक्ष करते हुए पूरे के पूरे समग्र मानव जीवन को अपने उस व्यंग लेखन के माध्यम से चित्रित करते रहे। उनकी आक्रोशमयी अभिव्यक्ति किसी सामाजिक सुधार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए लक्षित थी। उनको पढ़ते हुए एक नई दिशा का बोध हमको होता था। कहीं ना कहीं उसमें एक कहानी की सी अनुभूति हम महसूस करते थे। उनके साहित्य में निहित उन जनवादी मार्क्सवादी मूल्यों की आपने विस्तार से व्याख्या की। बहुत बहुत आभार। संभव हुआ और समय रहा तो इस चर्चा को हमारे प्रतिभागी हैं, चैट बॉक्स में तो काफी मित्रों की टिप्पणियां हैं, अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व कि मैं भाई मृणाल जी को आमंत्रित करूं, एक छोटी सी भूल मुझसे हो गई थी, उसका सुधार कर देते हैं। हमारी ये परंपरा रही है कि हम अतिथियों का ई बुके से स्वागत करते हैं। वो स्वागत छूट गया था, तो कोई बात नहीं, जब याद आए तभी ठीक। तो मैं प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ के अंदर फैकल्टी के रूप में काम कर रही हैं और स्वयं भी रेडियो इंडस्ट्री के साथ लंबे समय तक जुड़ी रही, आरजे प्रियंका के रूप में काम करती रही। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे बुके दिखा करके यहाँ हम सभी अतिथियों का स्वागत करें। प्रियंका सिंह। प्रियंका माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन वहाँ की स्टूडेंट रही हैं और रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग इनका एरिया स्पेशलाइजेशन है। इसके पूर्व रेडियो इंडस्ट्री में काम किया और एफबीबी मिस इंडिया, जीएसटी कॉन्फ्रेंस और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के एंकरिंग वो करती रही हैं। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आपकी रही है और टीचिंग में भी इन्होंने नए नए इनोवेशंस किए हैं। शायद कुछ तकनीकी समस्याएं दिखा दिया आपने बुके। सर मैं हाँ शेयर कर रही हूँ। हाँ साहब, हाँ जी जी जी। होड़ा जी, इस बुके पर अपनी कुछ भावनाएं सदा की तरह जी। ये सिर्फ बुके एक फूलों का ये समागम नहीं है जो मल्टी कलर यहाँ दिख रहा। इसके साथ हमारी वो भावनाएं जुड़ी हैं जिन भावनाओं के साथ ये फूलों का कलर और फूलों की खुशबू, फूलों ये रंग बिरंगी फूल और ये इसकी सुगंधित बढ़िया सुगंध वाली खुशबू हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और खुशबू के बारे में ये कहा जाता है कि खुशबू को किसी भी न तो डेमोग्राफिक बंधन में, न रिजर्वेशन के बंधन में, न शब्दों के बंधन में बांधा जा सकता है। बल्कि मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी खुशबू के बारे में कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूं, बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो ये हम इसे कहीं भी रोक नहीं सकते। आप तक ये खुशबू पहुंच रही है, आप उसका एहसास अपने दिलों में रखें, उन रंगों का एहसास रखें और इन्हीं रंगों के एहसास के साथ वो जो शताब्दी समारोह हम मना रहे उनको नमन करते हुए हम अपने लिए प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इन ही एहसासों के साथ अपनी इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं भ्रेण मृणाल जी को आमंत्रित करूंगा। हालांकि परिचय मैंने आपका अभी दिया था, चूंकि कुछ तकनीकी समस्याएं थी। मृणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन हमको सुन नहीं पा रहे थे। तो जैसा मैंने कहा कि मृणाल जी का बहुत लंबा एसोसिएशन टीचिंग के साथ, मीडिया के साथ, और अभी हाल ही में आपको डिलीट की उपाधि भी मिली है। और जैसा मैंने कहा कि विभिन्न भाषाओं में आप लिखते रहे हैं और अभी जो बड़ा काम आपने किया जन्म शती वर्ष में, आपने एक पुस्तक अनुवाद की है जिसमें हरिशंकर परसाई जी के कुछ व्यंग हैं और कुछ कहानियां हैं। कुल 28 रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की, जो उड़िया में अनुदित हुई है, जिसका नाम है भोला राम की आत्मा। जैसा मैंने आपसे कहा कि भोला राम का जीव तो उनकी बहुत ही चर्चित कहानी है, तो आपने इस पुस्तक का नाम रखा है। उड़िया में है, तो हमारे उड़िया भाषी यदि कुछ मित्र जुड़े हैं वो तो इसके शीर्षक को पढ़ पाएंगे। लेकिन
पुस्तक का कवर पेज हमारे पास उपलब्ध है और मृणाल जी अपने वो जो पुस्तक है वो अपनी उस विंडो में दिखा सकते हैं। मुझे वीडियो में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ मित्रों को दिख रहे हों। ये सब तकनीकी चुनौतियां हैं। तो एक तरह से हमारा भी ये सौभाग्य है कि मृणाल जी ने इस जन्म शती वर्ष पर हमारे इस मंच को चुना है इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए, जो उड़िया भाषा में है। और भाई जयंत जी ने ही इसका प्रीफेस जो है, भूमिका जो है वो लिखी है, जैसा उन्होंने अपने इस वक्तव्य में बताया था। और मृणाल जी का मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, हमारी अनेक वेबिनारों में आपकी सहभागिता रही है। और IIMC ढेंकानाल, जहां वो रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने कई वेबिनार्स कोलैबोरेट की हैं। और मुझे भी 2-3 बार आपके संस्थान में जाने का मौका मिला, अलग अलग कैपेसिटी में। तो मैं भाई मृणाल चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर, चूंकि आपने अनुवाद किया है, हरिशंकर परसाई जी को इतनी गंभीरता से आपने पढ़ा समझा है, तो संक्षेप में जो कुछ आपने महसूस किया उनके इस लेखन में हमारे साथ साझा करें भाई मृणाल जी। धन्यवाद। पहले तो मैं परसाई जी के उनको नमन करना चाहूंगा और माफी मांगना चाहूंगा कि पैदाइशी बंगाली हैं हम, और सारे बंगाली जो हैं वो गलत सलत हिंदी बोलने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। तो इसलिए मेरा भी यह जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है कि मैं गलत सलत हिंदी कहूं। लिंग ज्ञान तो हमारा है ही नहीं। फिर मैं आता हूं कि ये मैंने अनुवाद क्यों किया। ऐसा है कि हर किसी को हास्य और व्यंग दोनों पसंद है। व्यंग अगर दूसरों के ऊपर है तो ज्यादा पसंद है, अपना ऊपर है, मुझे कोई कटाक्ष करे तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ने में अगर ये दूसरों के ऊपर है बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जनरल ट्रेंड है। तो जब बचपन से ही हम जहां रहते थे, वो एक छोटी सी शहर है, बहुत ही छोटी शहर, लेकिन बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सा शहर था। और हमारे घर में 4 भाषाओं की अखबारें आती थी, बंगला, उड़िया, अंग्रेजी और हिंदी। 4 भाषा की 4 पेपर आती थी। तो उसके साथ समय बिताते बिताते कभी कभी हरिशंकर परसाई जी भी दिख गए, पढ़ भी लिया। लेकिन उनकी जो व्यंग है उसकी गहराई में तब जाने की मेरे हैसियत नहीं थी। मैं समझ भी नहीं पा रहा था बहुत कुछ चीजें, क्योंकि बैंक की एक बड़ी चुनौती है कि वो बैंक की एक कॉन्टेक्स्ट होती है, और वो कॉन्टेक्स्ट को अगर आप नहीं समझोगे तो वो बैंक की जो सूक्ष्मता को आप नहीं समझोगे। तो वो व्यंग और सारी लिटरेचर की जितनी भी जॉनर है उससे ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को जानो, कॉन्टेक्स्ट को अप्रिशिएट करो, और इसमें हंसी और व्यंग, जिसे उड़िया में हम रसिकता कहते हैं, बांग्ला में भी रसिकता कहते हैं, उड़िया में थट्टा भी कहते हैं, तो वो जो एलिमेंट है उसे भी आप अप्रिशिएट करोगे। ज्यों ज्यों मैं बड़ा हुआ तो बांग्ला साहित्य में भी बहुत अच्छे व्यंग और हास्य साहित्य हैं, तो उनके साथ रूबरू हुआ। उड़िया साहित्य पढ़ा तो उड़िया में भी बहुत हैं। तो ऐसे ऐसे फिर परसाई जी को बहुत अच्छा लगने लगा। सबसे बड़ी बात ना, परसाई जी बड़े अपने लगने लगे, जैसे मेरे अंदर के मैं ही मुझसे ये बात कर रहा है, ऐसे लगने लगे। और जो व्यंग्यकार हैं और उनमें उनसे और हरिशंकर जी के व्यंग में एक एज ए ट्रांसलेटर में बता पाता हूं कि एक जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि दूसरे जो ट्रांसलेटर है उनमें से बहुत सारे दूसरे जो व्यंग्यकार हैं उनमें से बहुत सारे व्यंग्यकार की जब हम पढ़ते हैं तो वो उतना अपने नहीं लगते, या तो फिर लगता है हमारे ऊपर की हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, या तो फिर इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें करते हैं, या तो फिर बहुत आम हो गए हैं।
परसाई जी हैं जो अपने लगने लगे। तो मैं उनको बहुत पढ़ा, और फिर ये 2024 में उनकी जन्म शती वार्षिकी है, ये मुझे 23 की बीचों बीच अचानक सी कहीं से पढ़ा और लगा कि अरे ये इनके तो जन्म शती वार्षिकी है, तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ वहां से ढूंढ के उनके किताब डाउनलोड किया, कुछ खरीदा और एक एक बनाया कि मुझे उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव उनकी जो लेख हैं उनको उड़िया भाषा में हमें लाना है। उड़िया भाषा में भी परसाई जी का लेख पहले ट्रांसलेट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार किया, हो चुका है। लेकिन पूरी 28 रचनाएं इसमें हैं इस किताब में, तो एक किताब के हैसियत से शायद ये पहली किताब है हरिशंकर जी की। बट इंडिविजुअली मैगजीन्स में छप चुके हैं, ऐसे छप तो चुके हैं। तो इसमें मैंने जब चुना तो वो एक बड़ी चुनौती बन गई मेरे साथ, किसको छोड़ू किसको लूं। तो मैंने बीचों की रास्ता चुना। कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, बोला राम की आत्मा हो गया, वैष्णव की फिसलन हो गया, अरे बहुत लोगों ने इसे पढ़ा है, बहुत सराहा है, तो उनको लिया। और कुछ कुछ रचनाएं हैं उतना फेमस नहीं है, उनमें से कुछ लिया। कुछ उनके स्टोरीज ली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल छोटी छोटी स्टोरी, एक अश्लील करके एक स्टोरी है, एक बिल्कुल छोटी स्टोरी, पुलिस की प्रतिमूर्ति, नेता की प्रतिमूर्ति, सॉरी नेता की प्रतिमूर्ति, बिल्कुल छोटी सी। इस तरह से छोटी छोटी रचनाएं कुछ ली, और एक ऐसे टाइप रचनाएं भी ली, ये जो आवारा भीड़ के डर, ये जैसे कि आमतौर पे जो व्यंग रचना हम समझते हैं, व्यंग कहानियां समझते हैं, वो ऐसा है नहीं, ये बहुत सीरियस बातें हैं। बट ये पूरी एक अलग स्टाइल में लिखा गया है। तो इस तरह की रचनाएं भी हमने इसमें लाने की कोशिश की। इसको मैंने लिखा, ये ट्रांसलेशन की आधी ट्रांसलेशन मैंने ले में बैठ के किया था, एकांत में। मैं 20 दिन के लिए ले गया था और ले में एकांत में बैठ के ये ट्रांसलेट किया। 20 दिन में 5 दिन इधर उधर घूमा, बाकी 15 दिन मानिए कि मैं परसाई जी के साथ ही था, या तो फिर परसाई जी के आत्मा के साथ था। जैसे भोला राम के आत्मा फाइल से लिपट के था, वैसे मैं उनके आत्मा के साथ ले में था 15 दिन ऑलमोस्ट। और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा। पूरी, पहले तो आप पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे, फिर ट्रांसलेट करोगे, फिर पढ़ोगे, एक एक लेख को आप एटलीस्ट थ्राइस 4 टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप अगर ट्रांसलेट ठीक से करना चाहते हो तो मैंने पढ़ा, मैंने किया। और हर एक लेख जब कंप्लीट हो रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि परसाई जी, और वो ले आप जानते हो बिल्कुल वीरान जगह है, और जहां मैं रहता था वो और भी वीरान था, और मैं अकेला था एक ह्यूज होटल रूम में। तो मुझे लगता था कि उस सोफे में वो बैठे हुए हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि बेटा तुम ये जो वर्ड यूज किया है ना, ये नहीं होगा, इसमें कुछ खामियां रह गई, या दोबारा करो। तो मैं उसे दोबारा करता था। इस तरह से इट्स, यू कैन कॉल इट अ लेबर ऑफ लव। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इसे ट्रांसलेट करके। ये किताब जब आई, जब मैंने इसे हाथ में पकड़ा, मुझे लगा कि हरिशंकर परसाई जी अगर जिंदा होते तो मेरे कंधे पे जरूर हाथ रखते और कहते कि बेटा अच्छा काम किया। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर letting me show you the Udiya translation of Harishankar Parsai ji. नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई भाई मृणाल जी। ये जो आपने परिश्रम किया और जिस तरह से आप अनवरत किसी न किसी परियोजना पर लगे रहते हैं,
मेरे ख्याल ये बहुत ही एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। इतने समाचार पत्रों में नियमित रूप से कॉलम लिखना, इतने अनुवाद करना और अपनी कृतियों को भी दूसरे भाषाओं में अनुवाद करते हुए देखना, फिर उन्हें पढ़ना और फिर मुद्रित फॉर्म में, जिसको हम अक्सर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, वो अपना अद्भुत है। और इसी बहाने दूसरी भाषाओं के साहित्य को उस भाषा के जानकार पढ़ पाएंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सेवा है जो हम विभिन्न भाषा भाषी जो हैं वो दूसरे साहित्य के प्रति इस प्रकार अनुरक्त होकर के इतने परिश्रम के साथ, इतने मनोयोग के साथ ये अनुवाद कर रहे हैं। इस पुस्तक प्रकाशन के लिए बहुत बहुत आभार, बधाई और आभार इसलिए कि आपने इस कम्युनिकेशन टुडे के मंच को चुना अपने इस अद्भुत ही कहूंगा मैं तो, जिस प्रकार से अपना अनुवाद किया और 15 दिन सारा काम छोड़ करके उन लेह की वादियों में बैठ करके आपने काम किया। क्योंकि अपनी तो बात छोटी मोटी होती रही है उस दौर में भी, तो ये जानकारी अवश्य थी कि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन रहस्य आपने अभी खोला है कि वहां बैठ करके आपने किस तरह से इन सारी चीजों को समेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आइए, अभी तक तो हमने सुना उन अध्येताओं को जिन्होंने एक व्यंग्यकार की रचनाओं को एक शोधपूर्ण और गंभीर दृष्टि से देखा। अब हम सुनते हैं एक व्यंग्यकार को। एक व्यंग्यकार को कैसे देखता है, क्योंकि व्यंग्यकार अपने समाज को उन विसंगतियों को कहीं ना कहीं देखता है और उसको अपने लेखन के माध्यम से, व्यंग चित्रों के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, क्योंकि मैं तो मृणाल जी की फेसबुक को जब देखता हूं तो रोज कोई ना कोई कार्टून भी देखने को मिलता है आज के उस समकालीन परिवेश में। तो किस तरह से चंद शब्दों के माध्यम से वो अपनी बात को कह देता है। इसी प्रकार से एक व्यंग्यकार भी अपने उस समाज को जिस निगाह से देखता है। तो हमारे साथ भाई प्रभात गोस्वामी हैं, जो कुछ दिन पहले एक नए विषय, बिल्कुल अलग विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े थे, रेडियो कमेंट्री को लेकर के। लेकिन आज वो रेडियो कमेंटेटर एक व्यंग्यकार के रूप में हमारे साथ है कि उन्होंने कई व्यंग्य लिखे हैं। मेरे ख्याल देश का कोई ऐसा पत्र नहीं है जिसमें उनके व्यंग्य नहीं छुपे हैं। 800 से अधिक व्यंग्य रचनाएं आपकी सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, दैनिक पत्र तो जो आप नाम लें, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, आपके यूपी के जो अखबार हैं, आज हम हर एक में छपते रहते हैं। आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, रोज कहीं ना कहीं आपको एक अपडेट मिलेगा कि आज वहां छपा, आज वहां छपा। उन्हीं में से कुछ चयनित व्यंग्य रचनाएं आपने पुस्तक रूप में प्रकाशित की हैं। 5 व्यंग्य संकलन आपके आ चुके हैं। बहुमत की बकरी, चुगली की गुगली, ऐसी भी क्या सेल्फी यात्रा, पुस्तक मेले में खोई भाषा और प्रभात गोस्वामी चयनित व्यंग्य। तो इस प्रकार से आपने व्यंग्य रचनाओं के संकलन प्रकाशित हुए, बहुचर्चित, बहुप्रशंसित भी रहे। इनकी समीक्षाएं देश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। और एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी प्रभात जी ने अपनी पहचान बनाई है। ये शुरू में जब बीकानेर से, तब तो मेरा इनके घर भी आना जाना काफी रहा और इनके उस पूरे लेखन के उस यात्रा को मैंने बहुत निकटता से देखा है। उस समय आप, क्योंकि हमारे यहाँ बीकानेर, हम सब मित्रों की जानकारी के लिए, कि साहित्य तो इस शहर को विरासत में मिला है। ऐसे अनेक साहित्यकार जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और आज भी मैं इन्होंने याद किया, इनके तो शायद वो रिलेटिव ही हैं और मेरे भी अच्छे मित्र थे, हमारे से बहुत सारे मित्र जानते होंगे, सुधीर तेलंग को, जो पहले हिंदी अखबारों में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़े। दुर्भाग्य से 8 वर्ष पहले उनका निधन हो गया था, तो आज ही प्रभात जी ने उनको भी याद किया। तो एक ऐसी विरासत आपके पास है, आपके मित्रों की, आपके परिजनों की, जो साहित्य साधना में लंबे समय से जुड़े रहे। तो भाई प्रभात गोस्वामी भी उसी तन्मयता के साथ निरंतर लिख रहे हैं। आपके अनेक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए और शीघ्र ही आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित होने वाली है यात्रा वृत्तांतों को लेकर के। दुनिया के 8-9 देशों की आप यात्राएं कर चुके हैं, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। तो वहाँ के सारे संस्मरण और राज्य सरकार के जनसंपर्क सेवाओं में लंबे समय तक रहने के कारण आपको प्रदेश के कोने कोने की यात्रा करने का मौका मिला है। और राजस्थान, जहाँ कहीं जंगल हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, उन सबको आपने एक यायावर के रूप में देखा है और उनके यात्रा वृत्तांत के रूप में भी आपने लिखा है। वो भी पुस्तक आपकी शीघ्र प्रकाश्य है। तो जब इस विषय की चर्चा हुई तो मुझे लगा क्यों नहीं एक व्यंग्यकार को भी हम सुने कि वो अपने से पहले के व्यंग्यकार को, जिसने व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठित किया,
उसकी क्या आज के दौर में प्रासंगिकता है, उनका लेखन किस तरह से आज के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। हमारे मित्रों ने चर्चा की कि किस तरह से परसाई ने उस दौर की उन विडंबनाओं को, विद्रूपताओं को पर कमेंट किया, टिप्पणियां की। लेकिन आज का व्यंग्यकार उस सारे परिवेश को आज के संदर्भ में कैसे देखता है, मैं अनुरोध करूंगा भाई प्रभात गोस्वामी से कि वो अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। प्रभात गोस्वामी। धन्यवाद सर, आपने एक बार फिर मुझे इस मंच पे आने का एक अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज हम जिस मनीषी के बारे में चर्चा कर रहे थे, काफी लंबी चर्चा हुई, बहुत सी बातें हैं, और बल्कि मैं कहूंगा कि परसाई जी के जीवन के चारों कोण को अगर हम देखें तो उनकी चर्चा बहुत अच्छे से इस मंच पे हुई है। जयंत कर जी, मृणाल चटर्जी, जो मुझे खुशी हुई कि मैं जानता हूं इनको कि ये कार्टूनिस्ट भी बहुत बेहतरीन है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उड़िया भाषा में परसाई जी के व्यंग का अनुवाद किया है। परसाई जी की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। 1924 में उनका जन्म हुआ था, और इस साल वो अगर हमारे बीच होते तो 100 वर्ष के हो जाते। लेकिन लेखक कभी मरता नहीं है। निश्चित रूप से परसाई जी ने करीब आधी सदी तक बहुत बेहतरीन व्यंग लेखन किया, और उसके बाद की जो आधी सदी है उसमें हम निरंतर परसाई जी को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से उनकी रचनाओं को सुन रहे हैं। आज भी अगर 100 साल के इस पूरे पीरियड को विश्लेषित करें तो परसाई जी का जो काल था वो 1947 के आसपास परसाई जी ने व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आए थे। और ये कहते हैं कि अगर आपको आजादी से पूर्व का भारत को देखना और समझना हो तो आपको मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना होगा, और आजादी के बाद की विसंगतियों, बाद की समस्याओं, बाद के समाज का जो चित्र अगर आप देखना चाहें तो आपको निसंदेह हरिशंकर परसाई जी को पढ़ना होगा। परसाई जी एक ऐसे व्यंग्यकार थे जिन्होंने खुलकर अपना जीवन जिया, और खुलकर उन्होंने लेखन भी किया। वो आरंभिक तौर में कहानीकार के रूप में सामने आए, 2 कहानी संग्रह भी उनके निकले, लेकिन उनको खुद को महसूस हुआ कि उनको लेखन में कुछ अधिक स्वतंत्रता की जरूरत महसूस होती है, और वही स्वतंत्रता की चाह उनको निबंध लेखन की ओर ले गई। व्यंग निबंध लिखे उन्होंने, उसके बाद में व्यंग भी लिखे, और व्यंग व्यथा को प्रतिष्ठित करने, जन जन तक पहुंचाने में परसाई जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी आप देखिए कि चाहे आप सोशल मीडिया के किसी मंच पे चले जाएं, आप यूट्यूब खोल कर देखेंगे, परसाई जी के व्यंग बड़ी संख्या में लोग आज भी देख रहे हैं। और उनकी आवाज में तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन लोगों ने उनकी रचनाओं का पाठ किया, और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने उनकी कुछ रचनाओं का अपनी आवाज में वाचन किया है, जो आपको यूट्यूब में मिल सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में ही ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, उस पर जाके देखेंगे तो परसाई जी के जो पंच हैं उनको सबसे अधिक कोट किया जाता है। व्यंग की चर्चा परसाई जी के बगैर बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह गालिब के बारे में कहते हैं कि उनका जो एक अंदाज बयां था वो एक अलग था। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और मैं मानता हूं कि हिंदी व्यंग की अगर चर्चा करें तो हिंदी व्यंग के गालिब आप कह सकते हैं परसाई जी को, या हिंदी व्यंग में आप उनको गद्य के कबीर भी कह सकते हैं। हिंदी साहित्य के अनंत आकाश में कितने ही सितारे चमके और टूट कर अस्ताचल की ओर चले गए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सितारे थे जिनकी चमक सालों साल बरकरार रही, और उसी साहित्य आकाश में जो चमकता हुआ एक सितारा है वो है हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने बहुत व्यंग को भावुकता और उस
हास्य से दूर ले जाते हुए यथार्थ के धरातल पर रखा और उन्होंने विसंगतियों की सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उन पर प्रहार किया और उन्होंने उन विसंगतियों को, उन भ्रष्टाचार को, मिथ्याचार को, विडंबनाओं को आम पाठक के सामने लाकर पेश किया और पढ़ने वाले के मन में एक आक्रोश उपजता है कि हमारी व्यवस्था में कितनी कितनी विसंगतियां हैं जिनको हम देखते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं। और यह वह दौर था जब आजादी के बाद देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गरीबी, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का था, जिसके सामने जीवन का एक संघर्ष था, जीवन जीने की एक मुश्किल डगर थी। ऐसी डगर में बहुत से लोग अपने पथ से विमुख भी हुए और पथ भ्रष्ट भी हुए और ऐसे ही लोग समाज से बने हमारी व्यवस्था में वो लोग आए जिन्होंने उस व्यवस्था को भी किसी न किसी रूप में गलत उसका इस्तेमाल किया और उसी के कारण ये भ्रष्टाचार या मिथ्याचार ये जो आपके सामने पनपते हैं वो। तो परसाई जी तो निश्चित रूप से कहते हैं कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है, हमें सबको ये बताता है कि आखिर जीवन में हम जिन जिन चीजों को देख रहे हैं, कई बार हम बहुत सी चीजों को देखते हुए भी अनदेखी कर देते हैं। परसाई जी ने मिथ्याचारों, विसंगतियों, अत्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश किया। उनके अनेक व्यंग जो आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनको बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं और हर पाठक के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि अगर व्यंग्य को समझने की कोई कोशिश करता है तो उसे हरिशंकर परसाई को अवश्य पढ़ना चाहिए। मोटे रूप में उन्होंने बहुत से विषयों पर अपनी कलम चलाई, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों का जो सूक्ष्म विश्लेषण परसाई जी ने किया वो कमाल का था। उन्होंने ऐसी अनेक कालजयी रचनाएं लिखी। एक सफल लेखक वही माना जाता है जो अपने समय की विसंगतियों को पकड़ता है, जो अपने समय की मिथ्याचार या भ्रष्टाचार या आडंबरों को पकड़कर उस पर कटाक्ष करता है, उस पर प्रहार करता है, लेकिन आने वाले कल की आहट को सुनकर उस समाज की परिकल्पना, उस समाज में क्या कुछ हो सकता है उस तक सोच लेता है, वही कालजयी लेखक बनता है जो आने वाले कल की आहट को भी समझने में सक्षम हो। परसाई जी ने अनेक व्यंग रचनाएं लिखी और एक बहुत अच्छी बात यह कही जाती है कि समय बीत जाने के बाद भी उनकी कलम की जो धार थी वो कभी कम नहीं हुई। परसाई ने जितना भी लिखा, रचनाओं की धार समय बीत जाने के बाद भी उतनी ही तीखी बनी हुई है। आज भी इसका उदाहरण हमारे सामने है। भोलाराम का जीव, अकाल उत्सव, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, मुर्दे का मूल्य, वैष्णव की फिसलन, इंस्पेक्टर माता दीन एक ऐसी रचना जो थी जिसको फैंटेसी के जरिए उन्होंने लिखा और इतनी कमाल की रचना थी कि एक इंस्पेक्टर किस तरह से चांद पर जाता है और चांद की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देता है और अंततः चांद के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये कहना पड़ता है कि कृपया आप माता दीन की सेवाओं को यहीं समाप्त कर दें और उसको वापस बुला लें, क्योंकि उसने न केवल हमारी चांद की आधी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, हमारी संस्कृति को उसने नष्ट कर दिया है। तो किस तरह से पुलिस व्यवस्था में जो जिस तरह की एक तानाशाही होती है या पुलिस व्यवस्था किस तरह एक बेकसूर को भी कसूरवान ठहरा सकती है, इसके कई उदाहरण आज भी हम देखते हैं और यही कारण है कि आज भी परसाई उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो अपने दौर में रहे थे। परसाई ने जिस तरह से ठिठुरता हुआ गणतंत्र जैसा उनका एक बहुत ही बेहतरीन निबंध है जिसमें ये कहा है कि अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, वो हमको एक ऐसे समय में आजादी देकर गए जब आजादी का उत्सव हम मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस, तो बारिश होती है और जब गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं तो ठिठुरते हुए लोग उस गणतंत्र के उत्सव में शामिल होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये 2 दिन मेरे लिए
केवल उत्सव नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से वो सोचने और विचारने के लिए भी हैं कि हम इन 2 दिनों के उत्सव को मनाकर आत्म प्रशंसा से बचते हुए इनके मूल्यों और इनके महत्ता को अगर जन जन तक के मन में उतार सकें तभी हमारी सार्थकता मानी जाएगी। अकाल उत्सव जैसी एक ऐसी रचना जिसमें बताया गया कि अकाल जैसे भीषण जो अकाल पड़ता है, जिसमें त्राही त्राही मच जाती है, जीवन संकट में होता है और कई लोग मरते भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारी हमारे नौकरशाह हैं जो किस तरह से उसका लाभ लेते हैं। परसाई जी ने बहुत चुटके लेते हुए एक बात कही, एक पंच देखिए उनका, कि जिनका कोई भविष्य नहीं है उन्हें भी भविष्य फल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में भी भविष्य फल निकल पड़ता है, जैसे अकाल राहत कार्यों में अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से परसाई जी ने एक मीडिया के बारे में भी बहुत अच्छी बात कही। ये उस दौर में बात कही थी परसाई जी ने, कि परसाई जी ने अपने दौर में मीडिया पर कटाक्ष करते हुए एक बहुत बेहतरीन बात कही। एक जगह लिखा कि अखबार नवीस प्रजातंत्र का वॉच डॉग होता है, वह उसकी रखवाली करता है, तुम नहीं हिलाता। और आज जिस तरह से मीडिया पर यह लगाया जाता है इल्जाम कि मीडिया पूरी तरह से सत्ता के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है, तो ये बात जो उस दौर में परसाई जी ने आज से 50 साल पहले सोची थी, वो बात आज भी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसका अनुभव हो रहा है। तो यही एक लेखक की प्रासंगिकता है कि वो अतीत में भी उतनी ही प्रासंगिकता के साथ लिख रहा था जितना आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। और वो गूंजते हुए जब भी हम उनकी किसी व्यंग रचना को पढ़ते हैं तो हमको लगता है जैसे हम आज के दौर के किसी निबंध को पढ़ रहे हैं। और बहुत भ्रष्टाचार पर उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही थी कि सरकार कहती है कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी हैं। एकाध चूहेदानी की हमने भी जांच की, उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे निकलने के लिए है। चूहा इधर फंसता है और उधर से निकल जाता है। तो उनका कहने का बिटवीन द लाइन यही है कि आज भ्रष्टाचार के मामलों में भी जो अधिकारी फंसते हैं पिंजरे में, लेकिन पीछे का पिंजरा बहुत निकलने का रास्ता बहुत बड़ा होता है, जिससे वो भ्रष्टाचार करने के बाद भी निकल जाते हैं। लव जिहाद पर आजकल बहुत चर्चा होती है और परसाई जी ने अपने दौर में इस बात पर लिखा था कि आज जिस तरह से लव जिहाद की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं, परसाई जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि अपने यहाँ प्रेम की भी जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम है, एक ठाकुर प्रेम और एक अग्रवाल प्रेम है। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगे भी करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा आज भी, जबकि हम जिस दौर में परसाई जी ने ये बात कही थी उस समय हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत भी बहुत कम था, शिक्षा का अभाव था, समाज थोड़ा रूढ़िवादी भी था। तो उस दौर में ये बात जो कही तो बहुत गहरी और बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने कही थी। लेकिन आज जबकि हमारी शिक्षा का स्तर काफी ऊपर उठ चुका है, साक्षरता का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समाज संस्कारित और शिक्षित होने के बावजूद आज भी लव जिहाद जैसी बातों पर यकीन करता है और इस तरह के मामलों को वो अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए एक बवाल सा खड़ा करने में नहीं चूकते। तो यह बहुत बेहतरीन बात की थी। एक गो भक्त से भेंट व्यंग निबंध जो उन्होंने लिखा कि गाय को प्रतीक की तरह राजनीति में जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसके बारे में परसाई जी ने बहुत पहले लिख दिया था। और उन्होंने कहा कि जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह बहुत खतरनाक हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता जब कहती है कि हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुफ्तखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो, तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मांग है कि गो रक्षा
की जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें परसाई जी ने अपने व्यंग में लिखी। तो जो परसाई जी उस दौर में कह रहे थे, भोलाराम का जीव, जिसको मैंने अभी यूट्यूब पे पढ़ा था, साहित्य तक चैनल में काफी उसकी मैंने उस पर अपनी आवाज में पढ़ा और काफी लोगों ने उसको देखा और उसको आगे शेयर भी किया। किस तरह से नारद मुनि लाल फीता शाही का शिकार होते हैं और उनको अपनी वीणा भोलाराम की पेंशन स्वीकृत करवाने के लिए देनी पड़ती है, और वो भोलाराम जिसको मृत्यु के पश्चात दूत स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो उसके चंगुल से बचकर उस फाइल के अंदर चला जाता है, जहां उसकी फाइल पे लगातार पन्ने के पन्ने लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी मोटी फाइल बन जाने के बाद भी उसकी पेंशन स्वीकृत नहीं होती। तो यह लाल फीताशाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा उदाहरण है। यह व्यंग इतना विरुद्ध में व्यवस्था के लिखा हुआ है, उसके बावजूद हमने संजीव जी भी मेरे से सहमत होंगे कि हमने स्कूल के दौर में हमारे पाठ्यक्रम में ये व्यंग शामिल था उनका। तो एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि दिवस हमेशा कमजोर व्यक्ति का मनाया जाता है। हमेशा, जैसे हिंदी दिवस है, महिला दिवस है, अध्यापक दिवस है, मजदूर दिवस है, कभी थानेदार का दिवस नहीं मनाया जाता। तो एक सक्षम जो लोग हैं उसका कोई दिवस नहीं, दिवस हमेशा कमजोर का मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई के व्यंग में गहरी प्रतिबद्धता लेखन के प्रति नजर आती है। वैचारिक पृष्ठभूमि पे परसाई के व्यंग बहुत गहरे हैं और बहुत भीतर तक असर करते हैं। उनके एक एक पंच ऐसे हैं जो आपको उद्वेलित करते हैं, आपके मन में गहरी चोट करते हैं। और उनका व्यंग लेखन, समूचा व्यंग लेखन अगर हम देखें तो वो समाज को जागृत करने के लिए, समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, समाज को शिक्षित करने, जन शिक्षण की दृष्टि से भी, जैसा कर साहब ने बताया कि उनके व्यंग बहुत बेहतरीन थे। और यही वो वजह है कि आज 100 साल होने जा रहे हैं परसाई जी को, उसके बावजूद परसाई जी हमारे बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वो आरंभिक दौर में हुआ करते थे। तो इस तरह से परसाई, जिन्होंने अपनी पूरी कलम से बेजोड़ रचनाएं लिखी, समाज की हर उस विसंगति की वो तह तक पहुंचे और उन्होंने उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बहुत तल्ख शब्दों में उसकी आलोचना भी की, उस पर प्रहार भी किया। और उनके एक एक पंच आज भी हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। उनके व्यंग की प्रतिध्वनियां आज भी हमें सुनाई पड़ती हैं। और यही एक कालजयी लेखक की प्रशस्ति होती है कि वो हर युग में अपने लेखन से, अपनी कलम से एक पहचान जो उसकी बनी थी वो निरंतर बनती रहे। और मेरा विश्वास है कि न केवल बल्कि आने वाली पीढ़ी भी परसाई जी को इसी रुचि के साथ पढ़ेगी और परसाई जी के प्रति इतनी ही श्रद्धा निरंतर बनी रहेगी। आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई प्रभात जी। आपने एक युग दृष्टा साहित्यकार के उन शाश्वत जीवन मूल्यों का संकेत किया। मुझे लगता है कि जो साहित्यकार है वह वस्तुतः युग दृष्टा ही होता है। जैसा आपने कहा कि उस समय जो उनका चिंतन था वो आज भी प्रासंगिक है। साहित्यकार की नजर आज पे होते हुए भी वो भविष्य को देखता है, और यही कारण है कि उनके उन साहित्यिक मूल्य जो उन्होंने उस समय स्थापित किए थे आज भी किसी न किसी रूप से जीवंत है। जैसा आपने कहा कि वह हमारे मन को अभी भी उद्वेलित करते हैं, आलोड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मजबूर करते हैं हमारी इस व्यवस्था के बारे में सोचने के लिए, अपने कर्तव्य और अधिकारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए। भावुकता और हास्य से दूर हटकर उन्होंने यथार्थ के आधार पर चिंतन करते हुए अपने उन व्यंग को जन शिक्षण और आम आदमी के साथ जोड़ा। और आपका एक कथन बिल्कुल सही है, शायद इसी कारण वो कालजयी हो जाते हैं, कभी मरते नहीं हैं,
अपने कृतित्व के माध्यम से सदैव हमारे मन मस्तिष्क में वो जीवित रहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। 100 वर्ष परसाई जी के होने जा रहे हैं और हमारे इस जो ये वेबिनार श्रृंखला है, इसमें भी जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो 100 का नंबर क्रॉस कर गई है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हो सकता है कि हमारे तीनों वक्ताओं को सुन करके आपके मन में भी कुछ न कुछ सवाल खड़े हुए हों, कहीं कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करने की इच्छा हो परसाई जी के व्यंग्य लेखन को लेकर के, क्योंकि परसाई जी एक ऐसा लेखक है जिनकी रचनाएं विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रही है। जिन रचनाओं का भी उल्लेख सभी मित्रों ने किया, वह किसी न किसी रूप से हमारे टेक्स्ट में रही है, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कॉलेज में आ गए हों। तो यदि कोई मित्र कुछ सवाल करना चाहे, कोई टिप्पणी करना चाहे संक्षेप में, तो वो आमंत्रित है। यदि डॉक्टर रश्मि गौतम कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने काफ़ी टिप्पणियां की हैं। यदि वो अभी भी इसमें जुड़ी हुई और हमारी बात सुन रही हैं, तो अनुरोध करूंगा कि अपनी कुछ बात कहें या कोई भी मित्र कुछ कहना चाहें। वीडियो ऑन करें, नाम बताएं, परिचय दें और प्रश्न या टिप्पणी करें। लगता है कोई टिप्पणी नहीं है। सभी कुछ समझ में आ गया है, और लेकिन हम ये उम्मीद अवश्य करेंगे हमारे इतने सारे प्रतिभागियों से कि जिन्होंने परसाई जी को नहीं पढ़ा है, अवश्य पढ़ें। वो एक ऐसे लेखक हैं जो हमें सोचने को विवश करते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जीवन का, समाज का, जिस पे परसाई जी ने न लिखा हो। सहमति असहमति महत्वपूर्ण नहीं है। हम पढ़ कर के कहीं न कहीं एक चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, कहीं न कहीं हमारे समाज को हम उद्वेलित करते हैं, क्योंकि आने वाला समय नई पीढ़ी के हाथ में है। तो उन्हें इस तरह के जो कालजयी लेखक हैं, उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं आप इन सारी समस्याओं से अपने जीवन में रूबरू होते हैं। चलिए, अब कोई सवाल नहीं है तो मैं अनुरोध करूंगा, भारतीय विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थान जो है हमारे सहभागी हैं, यहाँ जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, वहाँ की जो अध्यक्ष हैं आयुषी सचदेवा चोपड़ा जी, जो लगभग 1 दशक से अध्यापन से जुड़ी हुई हैं और कम्युनिकेशन थ्योरी, मीडिया मैनेजमेंट आदि विषयों में आपका विशेष रुचि है, और शिक्षक के साथ साथ मीडिया के बहुत सारे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके साथ भी आप जुड़ी रही। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, इंडिया न्यूज़ आदि जो संस्थान हैं उनके साथ आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो एक ऐसी युवा शिक्षक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से आपने पढ़ाई की है और वहाँ रैंक्स भी रही हैं आपकी, और कई कॉलेजेस में आपने पढ़ाया है। संप्रति आप भारतीय विद्यापीठ में अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। तो मैं आयुष जी से अनुरोध करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें, लेकिन इसके पहले फिर एक छोटी सी भूल होते होते बच गई। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के तीनों एक्सपर्ट्स, इनको हम ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करना चाहेंगे। तो मैं फिर पूर्व की आरजे प्रियंका और आज की मीडिया शिक्षक प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ प्रदर्शित करें मेमेंटो और सर्टिफिकेट, ई मेमेंटो, ई सर्टिफिकेट। और ये बदलते परिवेश की पहचान है कि हम हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी में स्विच कर गए हैं, और जिस लेवल के कवि और पर्सनालिटी को आज हमने चर्चा किया, शायद थोड़े दिनों के बाद ये कहा जाएगा कि 100वीं सालगिरह के हम हिस्सा थे। तो इस फेबुलस प्रोग्राम में हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स, जो अपने अपने डोमेन में एकम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें किसी सर्टिफिकेशन और पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस अवसर पे ये सौभाग्य और गौरव लेना चाहते हैं कि ये 100वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन के मौके पे इस मेमेंटो और सर्टिफिकेट के ज़रिए हम अपनी प्रेजेंस आपकी लाइब्रेरी, आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल तक रखें। इसी पर्पज से ये सर्टिफिकेट और मेमेंटो प्रेजेंट किया जा रहा है। जी सर। चलिए, इन्हीं स्मृतियों के साथ अब मैं आयुष जी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। आयुषी सचदेवा चोपड़ा।
you so much, sir. Good evening to all the expert speakers and the members and my participants. Thank you, बनावत sir. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे expert speakers ने जो हमें ये सेशन दिया है. I hope रजनी मैम आप अपना माइक म्यूट कर लें. Thank you so much. तो बिल्कुल सही कहा बनावत सर आपने कि जो आज एक्सपर्ट स्पीकर्स ने हमें अपना ये लेक्चर दिया है और हमें इतने अच्छे से डीपली इस टॉपिक को बताया है, तो कोई सवाल की शायद गुंजाइश ही नहीं बची और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपनी पूरी डाइट इसके थ्रू मिली है. सो थैंक यू इज द ओनली माइटी प्रेयर दैट आई हैव एंड विच सेज एवरीथिंग, विच सेज इट ऑल. So for a very thoughtful session, for a very intellectual session, with all my regards, as being the convener of this webinar series, I would like to thank the expert speakers, Professor Chatterjee sir, Jayant sir and Prabhat Goswami sir. Thank you for giving us time. आपने हमारे लिए समय निकाला और इतना अच्छा सेशन दिया कि लोग अपने अपनी जगह सबने किसी ना किसी प्रकार की जरूर आज कोई फ्रूटफुल नॉलेज गेन करी है. Thank you for giving us time. I would also like to take the opportunity to thank you and pay my gratitude to Bhanawat sir and Professor M.N. Huda sir, who have visualized this flexible great learning series कि हम घर बैठे भी knowledge को gain कर सकते हैं. Knowledge is something which can come us to any time and from anywhere. So thank you so much for this. And my team members, because of whom this would not have been possible, जिनकी वजह से ये सब possible हो रहा है कि हम सब एक जगह बैठ के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर पा रहे हैं और अच्छी चीजें गेन कर पा रहे हैं. तो प्रियंका मैम, जयंत सर एंड ऑल माय बैक एंड टीम मेंबर्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू. उषा मैम, आई वुड लाइक टू थैंक यू. एंड लास्टली माय डियर पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ जुड़े थे इस वेबिनार का बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेने के लिए. कीप ज्वाइनिंग अस, कीप मोटिवेटिंग. थैंक यू. चलिए, हमारी ओर से भी धन्यवाद. एक सूचना के साथ कि हमारी अगली वेबिनार 13 फरवरी को है, वर्ल्ड रेडियो डे है. तो उस दिन हम एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें चितकारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जमशेदपुर, मेरे ख्याल हुडा जी का ही क्षेत्र है, ये जमशेदपुर के ही हैं, वहीं करीम सिटी कॉलेज में जो डिपार्टमेंट जर्नलिज्म है वहाँ की हेड हैं डॉक्टर नेहा तिवारी, वो होंगी. और जबलपुर से बैजनाथ गौतम, जो ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में रिटायर हुए हैं, ये तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होंगे 13 फरवरी शाम 6 बजे. लिंक हमारा सबका सेम है जिससे आप जुड़ते हैं, और बाकी डिटेल्स सोशल मीडिया और मेल्स के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगी. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. सर, सर्टिफिकेट्स